Welcome to Campus Program. Today we are taking you to Tejas Public School, Sidhwa Khurd Link Road, Jagaon, an excellent institute started by renowned educationist late Shri R.S. Patyal, founder, principal. Now, this school is running under the guidance of his son, Mr. Akshay Patyal, a hard-working and laborious man. Under his guidance, the school is progressing in leaps and bounds. Tejas Public School is affiliated to CBSE. Tejas Public School presenting a unique opportunity to experience the best school in your area for free. 6 months free from October 2022 till March 2023, exclusively for kindergarten, pre-KG, LKG and UKG. No admission or tuition fees will be charged for 6 months. If you want to experience the best education and the best school which your little one deserve, enroll Tejas Public School, Sidhwa Khurd Link Road, Jagaon. Parents were all praised to Tejas Public School when our team talked to them. Our team had a word with the principal of the school, and our team also had a word with the director of the school, Mr. Akshay Patyal, and he gave us the detailed information about the school. Let's go to Tejas Public School, Sidhwa Khurd Link Road, Jagaon. आप आए हो, अपने मम्मी पापा के भी साथ लाए हो। कैसा आपका आज रिजल्ट जो है वो भी डिक्लेयर हुआ है, कैसा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, क्या कहना चाहोगे? My name is Jashanpreet Kaur and I am from 7th. I got first position. And scored how many marks? I scored 93.5%. And the credit goes to? The credit goes to teachers. ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਰਕਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ LKG ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ? ਇਹਦੇ 94%। Today's meeting is not only a parent meeting, it is a awareness meeting, it is a कहाँ पर उनके बच्चे खड़े हुए हैं, रिजल्ट्स जो पहले सितंबर टेस्ट के आए हैं, और उसके साथ साथ जैसे हमने देखा कि अभी आप पेरेंट्स को बच्चों के लिए, क्योंकि आप काउंसल यही नहीं है कि स्टडी के लिए करते हैं, बच्चों की उनकी पर्सनल लाइफ के लिए भी, अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उनका जो अलाइनमेंट है अपने माँ बाप के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ सही नहीं चल रही, तो भी आप उनको गाइड करते हैं। हमने देखा कि आपने एक पेरेंट्स को आज इंडिविजुअल आप मिले और उनको बच्चों की कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है उनको डिस्कस किया। क्या कहना चाहेंगे कि जो स्कूल है, जो आपके मानयोग फादर जिन्होंने सारी ज़िंदगी विद्या का दान दिया, मदर ने विद्या का दान दिया, उनकी क्रिएशन है ये, और इसमें एक अलग तरह का, ये गांव वाले वो स्कूल नहीं है कि वहाँ फीस जमा करवा दी और चले गए। यहाँ तो एक करैक्टर बिल्ट, एक माइंड सेटअप, यहाँ पर तो एक ऊंचाई के साथ बच्चे जो है वह यहाँ पढ़ कर निकलते हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर। इसमें ऐसा है, जो शिक्षा है सर, जो मेरे पेरेंट्स जैसे एजुकेशनिस्ट थे, गुरु का जो रोल है सर, हमने जब आप हमारे अपने धर्म उपनिषद वेद को समझें, अगर हम किसी भी धर्म की किताब को समझें तो उसमें एक सबसे बड़ी बात लिखी है कि ज्ञान की प्राप्ति और गुरु, दुनिया में कोई भी चीज़ हो सकती है, एनीथिंग, चाहे सूरज हो, चाहे पानी है, चाहे आग है, चाहे पक्षी है, चाहे जानवर है, चाहे वो शेर है, सब कोई ना कोई ज्ञान दे देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है सर, जो अज्ञानता होती है वो सोशल लेवल पे फैल जाती है। व्हेन आई से सोशल लेवल, व्हाट आई मीन टू से इज़, अभी आप सुन रहे थे शायद, पेरेंट बच्चे की मोबाइल की यूसेज को लेके परेशान थे कि बच्चा मोबाइल के पीछे भाई बहन लड़ भी रहे हैं और ज़्यादा टाइम जो है वो मोबाइल पे निकल रहा है। पर अब उसमें अज्ञानता की बात यह है कि वो जो मोबाइल है घर में, वो किसका है सर? वो पेरेंट का ही है, जो घर को चलाता है, जो घर का रख रखाव करता है, जो रोज़ी रोटी का साधन है। तो जहाँ वो बाकी चीज़ें दे सकता है, वहीं उसी के पास क्षमता है कि वो चीज़ों को जो बच्चे के लिए सही नहीं है अभी, उनको रोक भी सकता है।
तो वो थोड़ी सी गाइडेंस करके कोशिश करना कि हम उनको समझा पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो पिछले 2 साल का कोरोना का इन्फ्लुएंस भी बच्चों को बहुत परेशान कर गया है। सारा कुछ ऑनलाइन था, बच्चों को वैसी ही एक एडिक्शन हो गई है डिवाइसेस की, मोबाइल्स की, उससे हटाना ज़रूरी है। प्रेरणा का स्रोत बनना ज़रूरी है सर। एज अ गुरु हम लोग कोशिश यही करते हैं, क्योंकि स्कूल जो होता है उसमें सिर्फ बच्चा नहीं पढ़ता, ये बात मैं बार बार हम रिपीट करते हैं। स्कूल में जो टीचर होता है उसके लिए हम जो प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, हमें उसका गुरु बनना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक बच्चा पढ़ के ही आया, उसको भी सिखाना होता है। पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, आप पेरेंट हैं सर, मैं हूँ, डेली लाइफ हमारी बहुत फास्ट चलती है, काम काज घर गृहस्थी, उसमें ये समझ पाना कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है हर किसी के लिए ईजी नहीं होता। तो वो थोड़ी काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट द चिल्ड्रन चेंज। आजकल एक गैप है जिसको हम इमोशनल गैप कहते हैं, थोड़ा सा वो है ही डिवाइसेस के कारण। सो वो बॉन्डिंग बढ़ाना, दैट इज़ अ रोल, एंड वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम उस रोल को पूरा कर पाएँ। And then alongside with education, now we are trying another thing. We have bought in a new smart class, which is the latest technologies, and parents are liking it. उनको पसंद आ रही है, तो उसके थ्रू भी कोशिश कर रहे हैं कि एनहांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ लैंग्वेज बढ़ जाए बच्चों का। एंड मैनर्स एटिकेट्स के लिए हमारे स्कूल में जो खासियत है सर वो ये है, हम सिर्फ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ बुक नहीं देते, हम इनको करेक्टर बिल्डिंग सिखाते हैं, साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं। व्हेन आई से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, this is the only school I think in the region, in this area, I'm pretty sure of that, जहाँ पर बच्चों को कटलरी यूसेज सिखाया जाता है। रिसेस में they are forced to bring fork knives and plates and we teach them from class 3rd onwards how to use this। अब कईयों को ये परेशानी भी लगती है, बट ये है नहीं, क्योंकि जब वो बड़ा होकर निकलेगा, पंजाब में तो अब सब कनाडा जाना चाहते हैं या फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, एजुकेशन का बहुत रिवाज है। इफ़ यू नो हाउ टू सिट देयर ऑन अ रेस्टोरेंट टेबल एंड यूज़ द फैसिलिटीज़, तभी आप रिस्पेक्ट गेन करते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत रोल और कैरेक्टर आता है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जो हमारे फाउंडर हैं मेरे पिताजी मिस्टर RS पटेल, जो उनका सपना है, जो उनका एम है गाँव के बच्चों को एजुकेशन देने का, वो हम पूरा कर सकें। दैट इज़ द रोल। सर, जैसे आप आई कंटैक्ट पेरेंट्स को सिखाते हैं कि आपने अपने बच्चों के साथ आई कंटैक्ट करना है, आपने अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करना, आपने अपने बच्चों को मोबाइल की कंसंट्रेशन बदलनी है, उनका माइंड सेट आप बदल के मोबाइल आपने उनसे दूर कराना है, ना कि उनसे छीन कर। जिसके क्या कहना चाहेंगे कि ये आजकल की बेसिक्स हैं जिसके साथ बच्चों के साथ उनका कम्युनिकेशन गैप, जैसे आप बता रहे हैं, बात कर ही रहे हैं कि बढ़ रहा है, और कोरोना के कारण जैसे उनको ज़्यादा ही मोबाइल के ऊपर सारे आ गए थे। हालांकि दिस इज़ नेसेसरी, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी थी, मोबाइल्स के ऊपर, डिवाइसेस के ऊपर भी उनको जाना पड़ता था। लेकिन उससे हटाने के लिए जो भी चीज़ें हैं, अगर आप खुद मोबाइल आप तो खुद मोबाइल पकड़े बैठे हो और बेटे को कह रहे हो कि आप मोबाइल छोड़ दो, आप जैसे उनको टीच करते हैं, जैसे आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात की, इट इज़ रियली रेयर। कोई भी स्कूल जो है, नो डाउट पर्सनैलिटी पे वो एम्फसाइज करते हैं, लेकिन ऐसे एम्फसाइज नहीं करते जैसे आप हर चीज़ के लिए कि उसने बेसिक्स में कैसे निकला है। सर ऐसा है, एज अ स्कूल देयर कैन बी 2 सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन। एक जैसे हिंदुस्तान तो धरोहर है दुनिया के लिए सबसे बड़ी, जहाँ सबसे पुराने गुरुकुल, उपनिषद, वेद ग्रंथ, जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, ग्रहण कराई जाती थी। तो आज जो चेंज हुआ है, वो सबसे बड़ी बात जो चेंज हुई सर ये हुई है कि गुरुकुल का सिस्टम क्या था, बड़ा सिंपल था सर। चाहे राजा का बेटा है, बच्चे हैं, राजकुमार होते थे, जंगलों में ऋषियों के साथ भेज दिया जाता था। एक सहजता तक, एक उम्र में जब मैच्योरिटी आती थी, तब तक उनको वहीं ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, वेद ज्ञान, युद्ध ज्ञान सब वहीं दिया जाता था ना। उनको अभाव दिया जाता था ज़िंदगी के ऐशो आराम का। सही टाइम आने पे जब उनकी मैच्योरिटी ऑफ ब्रेन हो जाती है, हर इंसान की होती है सर, आज तो साइंस ने कह ही दिया है कि 25 साल की उम्र तक इंसान का ब्रेन अभी भी ग्रो कर रहा होता है। 25 साल के बाद एग्जैक्ट मैच्योरिटी लेवल डेवलप होता है इंसान का। तो वो तभी भी उसमें वो सहजता नहीं होती कि वो दुनियादारी को शांति से समझ सके। तो जब वो था सिस्टम, हम भी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। मैं फेसबुक पे बहुत देखता हूँ कि ऐसी कोई पोस्ट डली हो ना जिस पे ऐसा दिखाया हो कि पुराना सिस्टम, तो बहुत लोग कमेंट करते हैं। बट उसमें मज़े की बात यह है कि कमेंट तो सब करते हैं, बट रियल लाइफ में क्या हम आज की डेट में उसको फॉलो कर रहे हैं सर? क्या हमारे परिवारों में, मेरे 2 अपने बेटे हैं सर,
क्या मेरे घर में मैं अपने बच्चों को वो सहजता दे पा रहा हूँ? क्या मैंने उनको कंट्रोल सिखाया? क्या मैंने उनको समझाया पैसे की वैल्यू क्या है? क्या उनको मैंने ये समझाया कि माँ बाप जो होते हैं वो करता धरता होते हैं, उनकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट उनकी बात पहले है, और अभी वो इतने योग्य नहीं हुए हैं कि वो प्रश्न उत्तर हमसे कर सकें या हमसे आर्गूमेंट कर सकें। एक टाइम आएगा जब उनको ये हक मिलेगा। अभी वो सिर्फ भोगता है, ठीक है, उपभोक्ता नहीं है, वो सिर्फ भोग रहे हैं जो उनको माँ बाप दे रहे हैं। तो उनको वो रिस्पेक्ट मेंटेन करना ज़रूरी है। वो गैप की अंडरस्टैंडिंग हम पेरेंट्स को पूरी करने की कोशिश करते हैं सर। ये कई बार पिंचिंग भी हो जाता है, कई बार थोड़ा अजीब भी लग जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट हो सकती है, मैं मना नहीं करता हूँ। आप किसी को ये बोलो कि जी आपकी गलती है, मेरी अपनी गलती होगी, मेरी वाइफ की गलती होगी अगर मेरे बच्चे जो हैं वो सहजता नहीं रख पाते हैं सर। तो वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपने मोबाइल यूज़ करने की बात करी सर, इट इज़ द सेम कंटेक्स्ट। जब इमोशनल गैप है सर, जो आपने बोला कि आजकल मदर फादर सभी मोबाइल लेके घूम रहे हैं, मैं मना नहीं करता सर, बिल्कुल घूम रहे हैं, बट फिर बात वहीं आती है लीड बाय एग्जाम्पल। लीड बाय एग्जाम्पल का मतलब क्या है सर? हम ये तो देख रहे हैं कि माँ ने भी मोबाइल उठाया, फादर ने भी मोबाइल उठाया, बट क्या हम बच्चे को ये नोट करा रहे हैं या बच्चे को ये दिख रहा है कि माँ सवेरे 5 बजे उठी, सारे घर गृहस्थी के कपड़े लत्ते, रोटी पानी चाय सब की, सबको स्कूल भेजा, फादर नौकरी पे गया उसका किया, घर में बुजुर्ग हैं उनका किया, झाड़ू पोछा बर्तन सब किया, फादर सवेरे नौकरी पे निकला या बिज़नेस पे निकला, रात को 10 बजे आया, 11 बजे आया। परेशानियों को डिस्कस नहीं किया जा रहा सर। असलियत जो है थोड़ी सी वो गैप मार गई है। अगर आप मेरे से वो समझना चाहते हैं, जो मेरा पर्सपेक्टिव मैं आपको वो बता रहा हूँ। फ़र्क कहाँ आया सर? फ़र्क सिर्फ यहाँ आया, पहले परिवार में माँ बाप की भी जो परेशानी होती थी, जो घर गृहस्थी की एक्चुअल परेशानियाँ या बातें होती थी, वो बच्चों के सामने हो रही होती थी, तो सबको पता होता था इमोशनली एक दूसरे का दुख दर्द, तो बच्चे भी अपने आप को वैसे सहजता से रखते थे, परेशान नहीं करते थे। आजकल हमसे गलती क्या हो रही है, मैं फिर यही कहूँगा सर कि ये मेरे व्यूज़ हैं जो मैं समझता हूँ जिस चीज़ को। आजकल जो गलती हो रही है वो ये हो रही है कि बच्चों को सिर्फ सुख मिल रहा है, उनके सामने सच्चाई नहीं आ रही। सच्चाई से मेरी परिभाषा क्या है? हर गृहस्थी घर में दुख सुख होता है, बच्चों को सिर्फ सुख 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 नज़र आता है सर। उनके आगे बातें ही नहीं हो रही हैं, बंद कमरे में बात हो जा रही है, बच्चा मोबाइल पे कहीं बिजी है, फादर मदर अपनी डिस्कशन कर ले रहे हैं। जब आपको एक एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा जहाँ पर आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि असलियत क्या है ज़िंदगी की, वहाँ पर फॉर श्योर इमोशनल गैप आएगा सर, और आप अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशंस लेके अपनी अपनी जगह पे दूर दूर बैठोगे। उसको हल करने का एक ही जरिया है सर, नेचर चेंज। नेचर चेंज का क्या मतलब है? हम अपनों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करें, हम समझें कि हम परिवार हैं, बच्चा परिवार का हिस्सा है। 2 साल के बच्चे को भी पता होता है सर, 1 साल के बच्चे को भी पता होता है कि जब उसको कुछ चाहिए तो चीख मारेगा, किस लेवल की दादे के साथ, किस लेवल की माँ के साथ, किस लेवल की फादर के साथ, कि उसका काम हो जाए। तो हमें समझना पड़ेगा कि परमात्मा ने इंसान को बनाया है मतलब फरोश, मतलब इट इज़ लाइक एनिमल्स कि आप सेल्फ सेंटर्ड होते हो, बट आपको आस्ते आस्ते शेयरिंग केयरिंग सिखाया जाता है ना, धर्मोनुसार मंदिर जाना, मस्जिद जाना, कहाँ जाना सिखाया जाता है। वैसे ही ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। दैट इज़ ओनली सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी। सर, नर्सरी से ही स्कूल में जो नींवें मजबूत की जा रही हैं बच्चों की वाइट सीमेंट के साथ, ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों को छोटी क्लास से दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि एडमिशन चालू है अभी भी और बच्चे जो है अपने वो स्टार्टिंग में यहाँ भेज सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर और शुरू से ही उनके लिए इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर है कि स्टडी के साथ नहीं, उनको खेलों के लिए उनके क्लासरूम्स ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं कि हर चीज़ उसको बच्चों को मिल रही है और बच्चे एंजॉय करके जाते हैं। बच्चे रोते नहीं हैं स्कूल में आते हुए, उनको मज़ा आता है। क्या कहना चाहिए? राइट सर, एडमिशन्स आर ओपन। अभी हमने 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ही एडमिशन ओपन किए हैं। एक्चुअली मुझे जो लगता है कुछ तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन मार्केट में ये है दैट यहाँ थोड़े से पेरेंट्स को ये क्लैरिटी नहीं है कि स्कूल में जिसको हम प्री केजी क्लास कहते हैं वो बेसिकली फ़र्स्ट क्लास ही होती है जब आपका 2.25 साल ऑनवर्ड का बच्चा या 2.5 साल ऑनवर्ड का बच्चा स्कूल आ जाता है। वो ऐसा ही होता है जैसे आपके इलाके में या एरिया में मोहल्ले में किसी ने किंडरगार्टन स्कूल खोला होता है। तो प्री केजी LKG UKG क्लासेस 2.5 साल ऑनवर्ड्स से लेकर 5 साल तक की केटरिंग होती है। देन 5 ईयर 5.5 साल ऑनवर्ड बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है। वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस द स्टार्ट ऑफ द स्कूल, जो प्री केजी LKG UKG क्लास है, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट इस एज में जो बच्चे का बेसिक बेस बनना है वो बन जाए, क्योंकि बच्चा सोशलाइज करना सीखता है। हमने यहाँ बहुत नोट किया है कि पेरेंट्स आते हैं, बच्चा 3 साल का 3.5 साल का हो गया,
4 साल का भी हो गया है, बट उन्होंने आज तक उसको कभी स्कूल नहीं भेजा। और फिर आप नोट करेंगे, ऐसे पेरेंट्स से मैं ओपनली बात करना चाहूँगा कि वो नोट करेंगे कि उनका बच्चा बोलता कम है, बच्चा अभी खुल के बोल ही नहीं रहा है। वो बच्चा बोल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसको सोशल एक्सेस नहीं हुआ। उसके घर में तो उसकी बोलने की ज़रूरत पैदा ही नहीं होती है जी, आप उसकी ज़रूरतें पहले पूरी कर रहे होते हो। अरे 2-2 घंटे बाद पानी, दूध, जूस, रोटी, तो उसको ज़रूरत महसूस नहीं होती। बच्चा बोलता तब है जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, तो वो उतने शब्द ज़रूर घर में बोल देता है, बट स्कूल के एनवायरनमेंट में सोशलाइज़ करना सीखता है। 20 बच्चों के साथ बैठने की आदत पड़ती है कि ये भी एक माहौल है, माँ बाप के दायरे से बाहर का माहौल है। सो आपको अपने बच्चों को प्री केजी ऑनवर्ड्स ही 2.5 साल ऑनवर्ड आप उनको स्कूल भेज सकते हैं। एंड तेजस पब्लिक स्कूल इज़ केटरिंग टू दिस सिंस डे 1, पहले से ही है। सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्मार्ट क्लास है, रेस्ट रूम है जहाँ AC लगा रखा है, आयाज़ हैं जो आपके बच्चों को अगर वो सॉइल कर लेते हैं अपने कपड़े या कुछ, तो इट इज़ टोटली मेंटेन्ड लाइक एनी अदर किंडरगार्टन। एडमिशंस आर ओपन, द फैसिलिटी इज़ एक्सेलेंट। और जैसा कि हम कहते ही हैं, हमारे स्कूल का एक रूल है कि आप आएँ, विज़िट करें, हर क्लास में जाएं, वर्किंग टाइम पे आएँ। दिस इज़ ओपन एंडेड स्कूल। आप रिसेप्शन पे आएंगे, आप बोलेंगे कि हमें क्लास में जाके देखना है, बच्चों से मिलना है, यू आर टोटली अलाउड। आप हर क्लास में जाइए, बच्चों से सवाल पूछिए, टीचर को पढ़ाता देखिए। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड देन वी कैन टॉक ऑफ एडमिशन। तो दिस इज़ आई थिंक समथिंग डिफरेंट इन तेजस पब्लिक स्कूल, जहाँ पर आपको ओपन एक्सेस है क्लासरूम का। आप बच्चे की एडमिशन से पहले चाहे उसको डेमो बिठाना चाहते हैं 1 दिन 2 दिन क्लास में, आप बिठाइए, आप देखिए, आप समझिए, एंड देन यू टेक योर डिसीजन। एंड एज सच येस, एडमिशंस आर ओपन एंड वी स्टार्ट द सेशन बेसिकली इन 4 अप्रैल, नया सेशन जो है। बट अभी हमने ऑफ़र ये दिया हुआ है कि आप मार्च 2023 तक, ये जो 6 महीने अब चल रहे हैं, प्री केजी LKG UKG में ही सिर्फ आप अपने बच्चे का दाखिला करा लीजिए। सिर्फ 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, देयर इज़ नो अदर फीस, आपको ट्यूशन फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। और वी आर डूइंग दिस जस्ट फॉर द सेक कि एक बार आपको एक्सपोजर मिले, आप समझें कि हम डिफरेंट कैसे हैं। सो दिस इज़ द करंट ऑफर विच इज़ गोइंग ऑन जी। थैंक यू सर। राइट, थैंक यू सो मच। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇਜਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੇਜਸ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ, ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਂਗਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਦੇ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਔਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੇਟ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਟੇਲ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਦੋਨੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ 5th ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ 4th ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਉਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਟੀਚਰ ਇੰਨਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ A ਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ A ਗ੍ਰੇਡ 1 'ਤੇ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। Students, so today we will learn from Smartboard, and from Smartboard we will learn about vowels. So do you know what are vowels? Yes, there are 26 letters in A to Z, and we also call that alphabets. And from that alphabets there are some letters which we call vowels. Yes, do you know which
Then the next is sound of O. O sound is O. O orange. O ox. Then next is U. The sound of U is A. Umbrella. So these are the sound of these vowels. So now next, very interesting, we have also a vowel song. So let's start. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. We are vowels. How are you? So have you enjoyed? This is the sound of vowels. So today we will learn about vowels. Thank you. कैसा माइंड है, जैसे देख रहे हैं कि चेहरे पे फादर के भी मदर के भी एक अलग तरह की ग्लो है और टीचर्स भी बहुत खुश हैं। उनको पता है कि ये हमारी एक फेवरेट बच्ची है जो केवल स्टडीज़ में नहीं बल्कि ऑलराउंडर है। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब ये सब जो भी है, मैं जितनी भी हूँ मेरे पापा और मेरी मम्मा के कारण हूँ। अगर मेरे पापा मुझे मैथ्स ना पढ़ाते हैं और कोई सब्जेक्ट ना पढ़ाते हैं, मेरी मम्मा मेरा साथ ना देते, मैं ऐसी नहीं होती। एक्चुअली वो मेरे पापा ही हैं, सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं अपने पापा को दूँगी, क्योंकि अभी जितनी भी मैं गेम्स कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, वो सिर्फ पापा के कारण है, सिर्फ पापा के कारण। देखो, पहला तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਸਕੂਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਲਾਈਏ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸਰਕਲ 'ਚ 3-4 ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਪਟਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ DAV ਸਕੂਲ 'ਚ। ਤੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो मैं उन्होंने आके जो मिलिया पहली बार तो मैं बहुत इंप्रैस होया। तो मैं बाकी स्कूलों विजिट कर चुकिया सी, तो उनके मुकाबले उन्हों की इत्थे काउंसलिंग इत्थे अटेंडेंस बहुत वधिया सी, बहुत वधिया अटेंड कर रहे सी। तो मैं गुड़िया नूं जगरों छड्ड के, जगरों के सारे स्कूल छड्ड के इत्थे तेजस पब्लिक स्कूल दे विच लाउण दा फैसला किया। तो मेरा फैसला मैनू पहले साल तो ही सही नज़र आउण लग गया जदों वो खुद इन्हां दी क्लास लै रहे सी बच्चों की, और हर पॉइंट ते जिथे वो वीक फील करते सी उत्थे उन्हां नूं वो प्रॉपरली अटेंड करके प्रॉपरली गाइड करते सी। स्पोर्ट्स के फील्ड च भी गुड़िया नूं अगे लैके गए, ठीक है। पढ़ाई के फील्ड च हुण मैं 9वीं तक आ चुकी है गुड़िया। तो मैं इस स्कूल तो इन्हां दी परफॉर्मेंस तो इन्ना सैटिस्फाई होया, मतलब कोई भी समस्या आवे तो सानू परसनली अटेंड करते हैं। पटियाल साहब नहीं भी हैगे पर उन्हां दे लड़के अक्षय पटियाल जी भी मैनू प्रॉपरली अटेंड करते हैं, प्रिंसीपल मैडम भी। तो जो उन्होंने दी अटेंडेंस आ है ना, उस चीज़ के उत्ते मैं इन्ना सैटिस्फाई होया कि सानू लग्या कि तुसी मतलब ऐदा बच्चों को किवें अटेंड कर पा रहे हो। मैं स्पोर्ट्स के फील्ड सुनिया, मैं स्पोर्ट्स के फील्ड क्या ना लास्ट ईयर मैं कह रहा सी कोरोना तो पहले, मैं कहा जी इन्होंने बच्ची नूं मेरे बॉक्सिंग का शौक है, इन्होंने बॉक्सिंग कोच रखा। मैं इन्होंने कहा जी इन्हूं चैस का शौक है, ये चैस तक डिस्ट्रिक्ट लैवल तक लैके गए। मैं इन्हूं कह रहा कि इन्होंने शॉटपुट का शौक है, मैनू गाइड कर दिया कि शॉटपुट लिए आप आह करना है, ठीक है। तो मे भी इन्होंने जिमें प्रैक्टिस करा रहे हैं तो नैक्सट ईयर शॉटपुट के प्राइज़ लऊगी। और आने वाले टाइम दे विच मैं देखा कि जो बच्चों को आईलैट्स की लोड़ पैंदी है, बच्चे इंग्लिश पुअर हो रहे बाकी क्लासिस दे, तो मैं इत्थे कभी नहीं देख पाया कि बच्चा कोई इंग्लिश चों माड़ा निकले। तो असीं कहने कि बच्चे इंग्लिश भी पूरे कामयाब हो रहे हैं। तो मैं तो इस स्कूल की परफॉर्मेंस तो 100% सैटिस्फाई हाँ, बिल्कुल जी। शुक्रिया जी। पहला तो मैं बहुत धन्यवाद करती हाँ तुहाडे चैनल का भाई साहब कि तुसीं सानूं इस योग समझिया कि असीं इत्थे बैठे तुहाडे सामने। तो असीं तो इस स्कूल वास्ते जो वर्ड्स भी कहिए वो भी घट है, बहुत घट है। जिन्ना भी इस स्कूल की प्रेज़ करिए सानूं इत्थों बहुत कुछ मिलिया।
ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਲਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੇਨ ਨੀਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ। ਸ਼ੀ ਗॉट 3rd पोजीशन टुडे बट शुड बी हैप्पी। तो बस यही कहना चाहती हैं कि इस स्कूल का नाम बहुत होए, जिस तरह साडा बच्चा अगे वध रहा उस तरह ये स्कूल बहुत बहुत तरक्की करे। Hi everyone, I am Anvi Kalsi and I welcome you all to Tejas Public School. This is our library and this is our library in charge, Mrs. Jaswinder Kaur. In our library we have more than 6,000 books and there are near about 100 magazines. We also have newspaper available in all 3 languages. This is 4th class. We have smart boards here so that teachers can teach the student more productively, and this helps to the students to gain and catch the things more easily. I, Ramandeep Sharma. So here we have smartboard. We use smartboard to teach students by using audio-visual aids so that concepts can become more clear to them. We have green board and we have oven. This is our computer lab. We have one projector, green board and about 30 pieces of computer. This is our math lab, bio lab. As you can see, all equipments are here that students require. It's well equipped. All the operators are available here. This is our physics lab. All equipments are here so that students can perform their experiments easily. This is our chemistry lab. Here we have taps, tubes, all chemicals are presented. Here sports room, table tennis, all kinds of indoor games like carom, students can play easily. Toy room. Here we have slides, horses, teddy bears, rings, balls, so that students of nursery classes, pre-primary classes, they can play together, they can make fun and they can do rest also. We have bulletin board. Our school has a lot of things to show, along with good staff, good reputation, healthy and green environment. Our principal, ma'am, she is very supportive. She has an ability to motivate teachers and students. Especially thanks to our director sir, Akshay sir, who always motivate, guide and help us. So now we will visit class +1. We have smart board, green board and a bulletin board. Good morning dear students. I am Nimratpreet Kaur over here to teach you the subject English. So today's our topic is noun. So what is a noun? Noun is the name of a person, place, animal or a thing. You can see around yourself everything has names. हर एक चीज़ का एक name है. So you can see the person's name, place's name, animal's name, thing's name. Like, what is this? What is this? This is a TV. So इस TV का भी एक नाम है. This is a lecture stand and you are sitting on benches and you have books. So you can see everything has names. शुभ प्रभात, मेरा नाम सुखविंदर कौर है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। आज हम करेंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है? किसी चीज़ की खास बात जो किसी चीज़ की खासियत को बताए। अब यहाँ क्या है? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज़ का नाम, कोई भी चीज़ है। जैसे आपका क्या है? स्क्रीन है, दिख रही है आपको, और क्या है? नाम है। यदि मैं बोल रही हूँ आज हम पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? किताब से पढ़ेंगे। तो किताब बोला, उसका नाम लिया ना मैंने, तो वो क्या है? संज्ञा वर्ड है। तो किसी भी चीज़ जैसे संज्ञा और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं वो होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। Good morning students, I am Mamta Ratan and today we will discuss the topic that is rational number,
First of all, we will discuss the definition of a rational number. What is rational number? Rational number is that number which can be represented in the form of P or Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. And there are some examples of the rational number, like we can represent the rational number on the number line, and when we represent the rational number on the right hand side of the number line, that are called the positive rational numbers, and when we represent the negative rational numbers in the left hand side on the number line, that are called negative rational. ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਪੇਰੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਕਸ਼ੇ ਪਟਿਆਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੰਬਲ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਜੈਮ ਆਫ ਪਰਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਇੰਟਰਾ ਕੈਰੀਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈਗੇ ਆ। So here, this is teachers' staff room. It is very spacious. As you can see, the arrangement of ventilation, windows, the furniture, chairs, tables, all are very comfortable to sit. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ, ਤੇਜਸ ਸਕੂਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਚਾਲੂ ਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਦ ਲਈ ਤੇਜਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਆਪਣਾ 100% ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਜੋ ਏਮ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪੋਕਨ ਹੈ, ਈਵਨ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਨੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਕੇਜੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋ 6 ਮੰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਕਲਾਸਿਸ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਫਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਨਾ।
बिल्कुल सर, ये सर बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਏਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ IQ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਮੈਨਰਸ ਨੇ, ਐਟੀਕੇਟਸ ਆ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕੀ ਰੋਂਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ मोल्ड करते हैं बच्चे को। थैंक यू मैडम। वेलकम सर। मैडम हम देख रहे हैं कि यंग एनर्जेटिक स्टाफ है आपके पास और हाईली क्वालिफाइड, क्या कहना चाहेंगे? सर जो भी मतलब एजुकेशन की अगर बात करें तो सारी चीज़ें टीचर्स की कोऑपरेशन से ही होती हैं। एक सिंगल आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, ये टीम वर्क है। यहाँ पे हर बंदे की वैल्यू है, टीचर्स की अपनी वैल्यू है, नॉन टीचिंग स्टाफ की अपनी वैल्यू है। टीचर्स अपना बेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने लॉकडाउन में भी बहुत ज़्यादा बेस्ट किया और अब भी लगे हुए हैं और ये बेस्ट ही प्रूव करेंगे। टीचर बेस्ट करेंगे तो रिजल्ट बेस्ट आएंगे, बेस्ट एडमिशन्स आएंगी। I study in Tejas Public School. My full